Hello friends, how are you? In our last class we started to discuss about the nucleus and unfortunately our time is was over. That's why we stopped. Now in today's class let we discuss about the nucleus. Some points which we discussed in the previous class. Let me repeat it. First thing, who discovered it? Robert Brown. The nucleus was discovered by Robert Brown in 1831. In 1831, it was discovered by Robert Brown. Got it? If we consider if we consider the importance of the nucleus, then we can say that it is the most important cellular structure which regulate the functioning of cell. Okay, because all the functions of the cell is regulated by nucleus. Okay, now if we consider the numbers, then normally a cell has single nucleus. Normal cells have single nucleus, but there are various cells which have more than one nucleus. That means they are multi-nucleated. For example, we can say that like the skeletal muscle cells, skeletal muscle cells, skeletal muscle cells of humans, they are like this and they have more than one nucleus. Okay, in our I think in the in the sixth chapter, when we studied about the tissues, then we will consider about that. Okay, and there are some cells also which do not have nucleus. That means they are anucleated. That means no nucleus. That means they do not have any nucleus. Got it? For example, if we consider then the mature RBC of humans, in the humans the mature RBC do not have nucleus. Similarly, sieve tubes of plant phloem tissue, they also do not have nucleus. Okay, understand? And we also discussed about the position where it is located. If we consider the position, then in the animal cells it is in the center, while in plant cells it is peripheral. In the plant cells it is peripheral. Okay, it is peripheral because of the presence of the vacuoles. They are peripheral. Okay, now after that we discuss about its part. Then we discussed that it has four parts. First is nuclear membrane. First is nuclear membrane. Second is nucleoplasm. Third is
nucleolus, and fourth is chromatin or chromosomes. These are the four parts of nucleus. We completed about we discussed till this topic, till this point. Now let us discuss about it. That is nuclear membrane. This flood that is called nucleoplasm. This is nucleolus, and that is chromatinate. Okay, now one by one let us start it. Nuclear membrane. The nucleus is surrounded by a double layered membrane. न्यूक्लियस जो है वो एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है या डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. दिस डबल लेयर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपन बोलते हैं. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज वेरी माइन्यूट पोर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स, जिनको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियर पोर्स. Got it? With the help of the nuclear pores, the exchange of materials takes place between the cytoplasm and nucleus. जो cytoplasm और nucleus के बीच में जो materials का जो exchange है, the material का जो exchange होता है, that is due facilitated or it is done by nuclear pores. किसके थ्रू होता है ये? nuclear pores के थ्रू ये event होता है. Got it? The nucleus is filled with a fluid called nucleoplasm. Nucleus जो है वो एक liquid part, जिसको क्या बोला जाता है? nucleoplasm, उससे filled होता है. Got it? It consists water, जिसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? water है, salts, inorganic salts, organic substances like the protein, amino acids, various type of other enzymes. These are present in this liquid part or this fluid part. Okay, clear? Now third, nucleolus. If we stain का मतलब होता है कलरिंग करना. जो न्यूक्लियस जो सेल्स होती हैं, इनको माइक्रोस्कोप से देखने के पहले इनमें जो है सेफ्रीन या जो कोल्चिसिन या कई टाइप के केमिकल्स हैं, डिपेंड करता है कौन से पार्ट की या कौन से ऑर्गेनिजम्स के अपन देख रहे हैं, तो उनसे इनको कलर्ड किया जाता है ताकि क्लियर इनकी पिक्चर वहां पर दिखाई दे इसकी. ओके, तो जब इसको स्टेन किया जाता है, व्हेन द न्यूक्लियस स्टेन और कलर्ड, देन देयर आर वन और मोर डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर्स. इसमें वन और मोर डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, विच आर कॉल्ड न्यूक्लियोलस, जिनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोलस बोलते हैं. डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट फॉन्टाना. ओके, डिस्कवरी अपने सिलेबस में नहीं है, जस्ट एक केस बोल दिया. सो दैट इज ए डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर, वन और मोर डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियो एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, दे आर एसोसिएटेड with the formation of ribosomes. Formation of ribosomes. जो ribosomes का जो formation है, किसका? ribosomes का जो formation है उसके लिए responsible होती हैं. इसीलिए अपन बोल सकते हैं these are called site of ribosome production. ये पूछा जाता है विच इज द साइट ऑफ राइबोसोम प्रोडक्शन, तो दैट इज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स के प्रोडक्शन से अटैच्ड होती है. गॉट इट? नाउ द लास्ट, दैट इज क्रोमेटिन. इन द न्यूक्लियोप्लाज्म देयर इज अ नेटवर्क ऑफ वेरी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. न्यूक्लियोप्लाज्म में वेरी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क होता है जिसे बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन, जिसको क्या बोलते हैं अपन? क्रोमेटिन. इट इज लाइक दिस.
In the undivided cell, it is like the thread like structure, but when the cell undergoes न्यूक्लियर सेल्यूलर डिवीजन, लेकिन जब सेल जो है सेल्यूलर डिवीजन के अंदर जाती है जिसमें 1 सेल से 2 सेल्स बनती है, एट दैट टाइम दे, दैट मीन्स क्रोमेटिन मटेरियल्स कंडेंस एंड टेक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स. कैसे हो जाते हैं? रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम भी बोलते हैं, कई लोग इसको क्रोमोसोम बोलते हैं, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है. तो दैट इज, दिस इज क्रोमेटिन. ये तो क्या था अपना? दैट इज क्रोमेटिन. ओके, एंड दिस कंडेंस स्ट्रक्चर दैट इज नॉन एज क्रोमोसोम. तो एक तरीके से यही है, जब सेल नॉर्मल सिचुएशन होगी तब तो नेटवर्क होगा, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. जब डिवीजन में जाएगी तो दे कंडेंस एंड बिकम्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड क्रोमेटिन, जिनको क्या, सॉरी, विच आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. ओके, इफ वी कंसिडर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, देन इट इज मेड अप बाय डीएनए एंड ए प्रोटीन. किसके बने होते हैं ये? डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं. हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, विच इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन. Got it? I'm again saying it is made up by DNA and protein which is called histone protein. If we consider the DNA, then complete name is deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. DNA is genetic material of living organisms. जो यूकैरियोटिक, अब आगे पढ़ेंगे अपन, जो डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर डीएनए जो है इट इज जेनेटिक मटेरियल. इट इज जेनेटिक मटेरियल. क्या है ये? जेनेटिक मटेरियल है. दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड. जो पेरेंट्स से जो चाइल्ड को जो कैरेक्टर्स का जो इनहेरिटेंस होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. वी आर सिमिलर विथ आवर पेरेंट्स. व्हाई? वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट द प्लास्टिक डॉल which are manufactured in the factory so that they have same components. That's why we all have the same structures. Okay, we are living organism. We started our life from a single cell which is called zygote, and from the zygote this a human being 1.3 trillion cells body is formed. Now the questions comes in our mind that why we are all of us are similar. I'm not saying same, I am saying similar, because we have similar genetic substance, that is DNA. हमारा जो जेनेटिक सब्सटेंस है डीएनए वो सिमिलर है सभी ह्यूमन बींग्स का. दैट्स व्हाई वी आर सेम और वी आर सिमिलर इन द बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर. गॉट इट? सो दैट इज जेनेटिक मटेरियल. रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो मदर और जो फादर हैं, मदर से जो एग सेल और फादर से जो स्पर्म फ्यूज होते हैं तो बनता है जाइगोट, और जाइगोट से डेवलप होता है वन, दैट इज वन सेल, 1 से 2, 2, 4, 8 मल्टीप्लाई होते होते दैट इज न्यू इंडिविजुअल. तो इस न्यू इंडिविजुअल के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एग सेल का डीएनए और जो स्पर्म सेल्स का जो डीएनए है उसके अंदर कोडेड होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है. गॉट इट? सो वी कैन से दैट इट इज genetic material. Other than this, DNA also play an important role in the controlling of our cells. जो cells की जो working है, cells का जो organization है, उसको control करने का काम कौन करता है? That is chromosomes या chromatin, या पर particularly अपन बोले तो that is DNA. राइट? तो सेल का जो कंट्रोलिंग है, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह है या सेल में सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन, वो सारा का सारा कंट्रोल किया जाता है बाय डीएनए. गॉट इट?
द एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए, अब ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, द एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। पूरा का पूरा डीएनए स्टैंड जो है वो एक जैसा एक्टिव नहीं होता। एक सिंपल सा माइंड में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है आपके नहीं मेरे, दैट ऑल द सेल्स हैव सिमिलर डीएनए, क्योंकि हम एक ही जायगोट, एक सेल से ही पूरा बने, तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उन सभी का डीएनए मटेरियल एक जैसा है, दैट इज सिमिलर डीएनए। बट व्हाई सम ऑफ द सेल्स आर डूइंग डाइजेशन वर्क, फॉर एग्जांपल आवर डाइजेस्टिव सिस्टम सेल्स, व्हाई सम ऑफ देम आर डूइंग द वर्क ऑफ pumping the blood, or we can say that different kind of functions. It is all of due to genes. The gene which is activated in that cell will the cell do function as per the gene. जिस सेल में जो जीन एक्टिव होगा वो सेल उसी जीन के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेगी। Got it? So that is active part of DNA. Okay? Now, if we consider the working of the nucleus, अगर अपन working of the nucleus को consider करें, then some of the functions we already discussed, that nucleus is the main controlling center of cell. Nucleus जो है वो मेन कंट्रोलिंग सेंटर है सेल्स का, जो उस सेल्स के जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको रेगुलेट करने का वर्क करता है। Got it? By directing chemical reactions in the cell, it determinate the development and working of cell also. सेल्स के अंदर चलने वाले जो केमिकल एक्टिविटीज हैं उनको डायरेक्ट करते हुए जो सेल की जो एक्टिविटीज हैं या सेल का जो डेवलपमेंट और वर्किंग है उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। इट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। एंड वन थिंग वी डिस्कस्ड हियर, न्यूक्लियस also play a very important role in the inheritance. Inheritance means transfer of characters from the parent to new organism. पेरेंट से जो न्यू ऑर्गेनिज्म को जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है इनहेरिटेंस। तो इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन एंड द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। रिप्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके अलावा जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गॉट इट? नाउ आफ्टर दैट द क्वेश्चंस, दैट इज prokaryotic and eukaryotic cells and organisms. It is related with the nucleus, so let me finish it. Prokaryotic cells, or if we consider the organism then we can say that organisms, and the organisms are called prokaryote. And second one is eukaryotic cells or eukaryotic organisms. Okay? Pro means primitive. कैरियो वर्ड डिराइव हुआ है कैरियन से, कैरियन, और कैरियन बोला जाता है न्यूक्लियस को। किसको बोलते हैं अपन? न्यूक्लियस को। सो वी कैन से दैट सच सेल्स विच हैव प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया? अनडेवलप्ड। ओके, so we can say that such cells which have primitive, undeveloped or undefined, तो क्लियर नहीं होता undeveloped है इसलिए दिखाई नहीं देता पूरा क्लियरली, undefined nucleus are called prokaryotic cells.
उन्हें क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं. वाइल दोज सेल्स विच हैव डेवलप्ड, और वी कैन से दैट डिफाइंड न्यूक्लियस, ऐसी सेल जिनके अंदर डेवलप्ड या डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, दैट आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स. उन्हें क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स. अगर अपन इस डेफिनेशन को और ब्रॉड करें तो देन वी कैन से दैट अनडिफाइंड न्यूक्लियस एंड लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जिन मतलब ऑर्गेनेल्स पे जो अपन आगे पढ़ेंगे, अपन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन सभी पर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए बोल सकते हैं अपन लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. सेकंड जो प्रॉपर्टी बोल सकते हैं अपन, दैट इज लैक यानी कि एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. These are called prokaryotic cells. और जबकि यहां पर क्या हो जाएगा? Presence of membrane bound cell organelles. इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनमें क्या रहते हैं? अब्सेंट. Got it? तो अगर अपन पूरी डेफिनेशन को कंप्लीट करते हुए अपन रीड आउट करें तो देन वी कैन से दैट सच सेल्स वो हैव अनडिफाइंड, अनडेवलप्ड और प्रिमिटिव न्यूक्लियस एंड also have lack of membrane bound cell organelles are called prokaryotic cells, and such organisms are called prokaryotes. और ऐसे organisms को अपन क्या बोलते हैं? prokaryotes. while जैसे अपन फर्स्टली एग्जांपल अपन कंसीडर करें, देन एग्जांपल इज वायरस. वायरस जो है वो कैसी है? प्रोकैरियोटिक सेल. गॉट इट? And if we consider the eukaryotic cells, then we can say that those cells who have defined nucleus and membrane bound cell organelles, वो न्यूक्लियस, वो सेल जिसमें डिफाइंड, डेवलप्ड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स. उन्हें क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स अपन बोलते हैं. गॉट इट? जैसे एग्जांपल अपन बात करें, दैट मींस जैसे ह्यूमन सेल्स, हमारी जो सारी की सारी जो सेल्स हैं वो किस टाइप की हैं? दैट इज यूकैरियोटिक नेचर. गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो अनडिफाइंड न्यूक्लियस है, अनडिफाइंड न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. इसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड बोलते हैं. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द अनडिफाइंड न्यूक्लियस ऑफ द प्रिमिटिव सेल्स और सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल्स इज नॉन एज न्यूक्लियोइड. उन्हें क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड बोलते हैं. इन दीज दे हैव ओनली न्यूक्लिक एसिड, नॉट द क्रोमोसोम्स एंड लाइक दैट स्ट्रक्चर्स. इनमें केवल न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं. कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर जो क्रोमेटिन है या क्रोमोसोम्स है वो इनमें प्रेजेंट नहीं होते. Got it? In the prokaryotic cells, due to the absence of membrane bound cell organelle, membrane bound cell organelle नहीं है, तो that means उसके फंक्शन कोई ना कोई तो करेगा, तो वो परफॉर्म किए जाते हैं poorly organized cytoplasm. That means we can say that functions are performed by, कौन से functions? Cellular functions. Cellular functions are performed by poorly का तो अपन क्या वर्ड काम में लेंगे? poorly ले लेते हैं. चलो, poorly developed साइटोप्लाज्म. जो इनका poorly developed साइटोप्लाज्म है
वो poorly developed cytoplasm ये functions perform करता है. Got it? So that is the difference between the prokaryotic and eukaryotic cells. Okay, more about the prokaryotic eukaryotic cells, that means a comparative table, we will discuss in next class.